I am your host Salim bin Mohammed Rafi, and here is my YouTube channel Zamir Universal. Why America does not stop in being a mischievous, an invader, troublemaker, invader, and a curse on this whole world. Always invading other countries, always stealing oil, gold, gas, always having its aircraft carriers all spread all across the world, and his hegemony. Has anybody wondered that the main root cause of every war, every trouble, every suffering, every genocide, every ethnic cleansing is right behind that is genocide? Small tiny countries in Europe, he gathers them. He did the same thing in the Second World War. All the alliances, and ultimately at the end, the main monster which helped in, or I would say helped defeat Hitler was United States of America's alliance with the Europe. Otherwise, he had captured the whole of Europe, and you wonder what would be the Europe been like today. It would be the most developed, most peaceful place, because he has got rid of the mischievous, the other, the terrorists, the other dirty, filthy race is the Jews. He had almost burned them all and left only about 10% of them so-called Holocaust survivors. There was no bloody such thing as Holocaust. Only few thousand people were killed, rest were just moved around, and you can see they have come out of just, the rats come out of their, wells. Now this is the same thing you can see that now Germany has not no lesson. Hitler, Austrian, but the whole Second World War, the center, epic center was Berlin, and the Hitler, all his generals, all his Nazis, they were there in Germany. And the result was the East and West, they carved eastern part with the communists or the Russians, and the West with the Americans. And still at Rani they have their troops. Done the same thing with Africa, in Asia, in Middle East. So the root cause of this evil is, unless you get rid of America, unless to defeat and eliminate or break it down, just like USSR, into 12 or 13 small tiny countries, then you are never ever going to have peace in this world. Sending these hypersonic missiles to Germany, and Germany should be ashamed. Then why on earth you want these things? You will never, ever. It's like pouring kerosene on already the burning fire in Ukraine. You know that nobody can win Ukraine war. And that's part of Russia. You have no damn business to go there. But the driving force which is pushing you to go and get yourself killed, get yourself destroyed, get your economy destroyed, get your people displaced, get your people, the exodus from the whole of Europe now reverse back to Africa or Asia. And this is what happened. More than 6 million of Ukrainians have already left, and they are refugees. Now that's what you are going to do to Finland, to Sweden, to Norway. This is exactly what's going to happen to Hungary. This is what's going to happen to Poland. And what will you get? The bar industry, only your shares will just go up, and then you should be ashamed. The whole American administration should be ashamed. But in fact, it's not Americans who are running the country, it's the epic, it is the Jews. So unless you get rid of this menace, you are never ever going to have this peace in there. And I will just show you that what is going to happen. Lebanon or Palestine is just an excuse. Netanyahu is just a puppet being played in that, the word, the picture on the greater picture on the canvas is now the Third World War is already midway through. Not people say it's not started. It is started. It's midway through, and the havoc it is going to play once the war between Lebanon and
Israel starts. You cannot imagine. You have seen flattened Gaza. You are going to see flattened Tel Aviv, Haifa, all the it is Zionist cities, and you are going to see just nothing but mountains and ruins. अंदाजा करें कि यूरोप इस वक्त इतना ज़्यादा खौफजदा है कि रूस का जो मिज़ाइल है, हाइपरसोनिक मिज़ाइल, और बाकी तमाम जो एटमी मिज़ाइल है, उन्होंने इस वक्त पूरे के पूरे यूरोप को अपनी रेंज में ले लिया है। और इतना खौफ फैला हुआ है कि अमेरिका ने जर्मनी के साथ एक अर्जेंट मुआहदा कर लिया और कहा है कि वो हाइपरसोनिक मिज़ाइल जो अमेरिका का यानी लॉन्गेस्ट मिज़ाइल है वो डिप्लॉय करने के लिए जा रहे हैं और जर्मनी में डिप्लॉय करेंगे और सीधा रशिया की इनसाइड टेरिटरी में जाकर वो हिट करेगा। यानी आप अंदाजा कर ले, कोई कसर बाकी ना रह जाए कि जंगें करने की। इन्होंने कुछ अरसे बाद इसको डिप्लॉय करना शुरू कर देना, अगले 2-4 साल दुनिया के लिए बस तबाहकुन है। लेकिन अभी ये सूरत हाल पैदा हुई है तो उसके साथ ये आप देखिए कि इस्राएली मजहबी पेशवा जो है, यानी जो उनके ऑर्थोडॉक्स यहूदी हैं, उसके सरबराह ने कह दिया है कि एक भी हमारा बंदा इजराइल की फौज में नहीं जाएगा, ना इंटरव्यूज देने के लिए जाएगा, ना उनके ऑफिस में घुसेगा। जो घुसेगा वो हमारे जमात से फारिग हो जाएगा और अगर ये ज्यादा दबाव डालेंगे तो हम लोग पूरे का पूरा इजराइल छोड़कर चले जाएंगे। अगर इन्होंने हमें जेलों में डालने की कोशिश, कुछ करने की कोशिश की तो हम इजराइल छोड़ जाएंगे। और ये असल में वो मामला है जिसे आप समझ लें कि लाखों के हिसाब से इजरायली मुल्क छोड़ सकते हैं। और इसके साथ ही लिबनान यानी हिजबुल्लाह के लीडर की जानिब से भी ऐलान कर दिया गया है कि हमने इजराइल में जो ड्रोन्स भेजे और चीज़ें कि हमने टारगेट पूरा कर लिया, अब इसराइल के ऊपर है अपने आप को बचाना है, हमसे लड़ाई करनी है। ये सारी बातें ज़रा समझ लें। देखिए, सबसे पहले जो इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हुई है वो ये है कि यूरोप के जो ममालिक हैं वो आहिस्ता आहिस्ता टूट कर रूस के साथ जाने के लिए तैयार है। कुछ जंग के लिए तैयार है, कुछ रूस के साथ मामला तय कर रहे हैं। अब सबसे बड़ा मसला ये है कि अमेरिका को ये बात समझ आ गई है कि आज के दुश्मन कल के दोस्त, कल के दुश्मन आज के दोस्त बनने में कोई टाइम नहीं लगता। सऊदी अरब और ईरान यानी आप सोचा आपस में लड़ाइयाँ कर रहे थे, और होसी और इसी तरह सऊदी अरब और बाकी सारे मिडिल ईस्ट की कंट्रीज आपस में लड़ाई कर रहे थे। आज सब ने लड़ाई खत्म कर दी, आज दोस्तियाँ हो रही हैं। तो किसी को कुछ नहीं पता चल सकता कि आज दोस्ती कल लड़ाई, कल दोस्ती आज लड़ाई। ये चीज़ें बड़ी तेज़ी से बदल रही हैं। अब हुआ ये है कि यूरोप को पूरी तरह रेंज में ले लिया है इस वक्त रूस ने। रूस ने काम ये किया है कि आपको पता है कि दुनिया के खतरनाक तरीन जो हाइपरसोनिक मिसाइल है वो है रूस के। और गालिबन अमेरिका को पता है कि रूस ने ही वो हाइपरसोनिक मिसाइल दिए हैं यमन के हूसियों को, और उन्होंने ही आगे यानी ईरान की मदद से और आगे वो तमाम टेक्नोलॉजी पास की और वो इजराइल को हिट करने जा रहे हैं। अब इन्होंने मुआहदा कर लिया है जर्मनी के साथ, और जर्मनी के साथ मुआहदा किया है कि अमेरिका अपने मिसाइल लेकर आ रहा है। यानी आप अंदाजा कर लें कितने घटिया लोग हैं कि उन्होंने जंग से परहेज नहीं करना कि अपने वो मिसाइल डिप्लॉय करने के लिए जा रहे हैं जर्मनी में, और कहा है कि जी वहां से हिट करेंगे हम रूस को। और रूस के अंदर यानी जर्मनी रूस के दरमियान मामला ये है कि उनको खतरा ये है कि सारे ममालिक ने चले जाए। मैं पहले ही ऐलान कर दूं कि हम कहां पर खड़े हैं कहां पर नहीं। जिस तरह आप देखिए बाकी ममालिक अब यूरोप के जो है, अब यूरोप पूरे का पूरा इस वक्त रेंज में आ गया है। यानी रूस के मिसाइलों की रेंज इस वक्त पूरा यूरोप है, और उनको ये बात समझ आ रही है कि हमारे तो ममालिक तबाह हो जाएंगे, हम तो अमेरिका की इस जंग में बर्बाद हो रहे हैं। और इस सिनेरियो में जब इंडिया भी खड़ा हो गया है रूस के साथ, यानी सहम मौके के ऊपर उन्होंने यूरोप, अमेरिका और तमाम ताकतों को कह दिया कि भाई हमारी अपनी इंडिपेंडेंट पॉलिसी है, हम किसी के मुलाजिम नहीं है या गुलाम नहीं है कि आप जो कहेंगे हम कर लेंगे। तो वहां पर इनको और भी झटका लगा है कि ये तो सारे हमारे हाथ से निकलते जा रहे हैं। अब इन्होंने यहाँ पर फैसला किया, हड़बड़ी में फैसला किया है कि वहाँ हम डिप्लॉय करने जा रहे हैं लॉन्ग रेंज हाइपरसोनिक मिसाइल। उससे पहले अब ये असल में चाह ये रहा है कि रूस को कंटेन करें, रूस को पूरी तरह हम तबाह करें। इससे पहले रूस ने हाइपरसोनिक मिसाइल मारकर अमेरिका के डिफेंस सिस्टम की मावैन एक की हुई थी, यानी पूरी तरह तबाह बर्बाद किया हुआ था उन्होंने। जिस सारी सूरत हाल में हम देखें कि इन्होंने जाकर उनके पूरे मिसाइल सिस्टम को यूक्रेन में उड़ा दिया। अब ये सबसे बड़ा उनके लिए झटका है। असल में तो इसराइल कंटेन करना चाहता है और पूरी तरह काबू करवाना चाहता है रूस को, और ये उनको लग रहा है कि यार अगर हमें रूस को लाना पकड़ा तो फिर हमारे लिए मसाइल बहुत ज़्यादा पैदा हो जाएंगे। और यही वो वजह है कि रूस की वजह से अमेरिका इस वक्त ये अगर मामला हो जाता है कि कोर्ट ऊपर से कोर्ट का प्रेशर आ रहा है,
कोर्ट ये कह रही है कि नहीं इनको भर्ती करें, वो कह रहे हैं हम जेलों में चले जाएंगे। अब इसराइल की जेलों में इतनी गुंजाइश नहीं है। हालिया आपको पता है कि इन्होंने गजा के बहुत सारे लोगों को रिहा कर दिया था, ये कहकर के भाई हमारे पास तो सेल्स में गुंजाइश ही नहीं है इतनी ज़्यादा, तो हम करेंगे क्या। तो मसला उनके लिए सबसे बड़ा ये पैदा हुआ है कि अपने लोगों को, अगर हम लाखों लोगों को कैसे जेल में रखेंगे, कैसे मैनेज करेंगे। देखिए लाखों लोगों को आप अगर मुल्क छोड़ जाए तो इकोनॉमी पर असर कितना बढ़ता है, टैक्स से लेकर सेल ड्रॉप हो जाती है। बताइए कोई कंपनी उस मुल्क के अंदर कितना इन्वेस्टमेंट कर लेगी कि यहाँ पर लाखों लोग छोड़ जाए। सो इसराइल को ये सबसे बड़ा झटका ये लगा है कि अब वो जबरदस्ती कह रहे हैं कि नहीं तुम फौज में भर्ती हो, फौज में भर्ती हो। वो कह रहे जो पहले भर्ती हुए तुमने उनके साथ क्या कर लिया, वो किसी सूरत लड़ाई नहीं करना चाहते। अब यहीं पर इख्तलाफ हो रहा है कि आर्मी चीफ की जो हमदर्दियां हैं वो इन लोगों के साथ है, वो इनकी बैक पर हो रहा है कि उनको कहो कि यार आप जंग बंद करें बजाय कि आगे लेकर जाने की। आप ये सोचे ना कि फौज के अंदर इतनी डिवीजन इनकी पाई जाती है कि नीचे वाले जर्नैल कुछ कह रहे हैं, ब्रिगेडियर्स कुछ कह रहे हैं, निचली यूनिट्स कुछ कर रही हैं, आर्मी चीफ की कुछ सोच है, किसी को बात समझ नहीं आ रही कि हमने कैसे इनके साथ लड़ाई करनी है। आर्मी चीफ उनको कह रहे कि यार आप ये डील फाइनलाइज करें, आप इस लड़ाई को खत्म करें और मामला तय करें, और वो आगे लेबनान की साइड से जा रहे हैं। सो अब सबसे बड़ा जो मसला ये पैदा होने वाला है, रूस के खिलाफ जो इकदाम हो रहे हैं, रूस असल में करेगा क्या। देखिए इससे शामत आएगी इजराइल की सबसे ज्यादा। मसला ये है कि रूस के खिलाफ ये जब जाएंगे, वो देख रहे हैं कि फौज इनकी लड़ने के लिए तैयार नहीं है, वो ओपनली जाकर कॉन्ट्रैक्ट करेगा। देखिए प्यूटिन के आपने सारे खौफ खत्म कर दिए हैं, आपने उस बंदे के खौफ कैसे खत्म किए, आपने उस पर लगाई हैं पाबंदियां, अब उसको किसी पाबंदी की परवाह नहीं, वो अब डायरेक्टली डील करेगा जाकर लेबनान के साथ। वो कहेगा ठीक है जी हम यहाँ पर हाइपरसोनिक मिसाइल डिप्लॉय कर रहे हैं, और वो किस लिए कर रहे हैं, वो कहेंगे जी हम इनकी हिफाजत के लिए उनके साथ इत्तेहाद करेंगे। आप एक मिनट के लिए सोचे वो दिन कैसा होगा कि जब रूस ओपनली ऐलान करेगा। हालिया उन्होंने ऐलान किया ना कि अफगानिस्तान हमारा इत्तेहादी है और सब कुछ है, वो दिन आप देखिए कि जब अफगान तालिबान ओपनली ऐलान करेंगे कि रूस का डिफेंस सिस्टम हमारे मुल्क में पहुंच गया है, उसका तमाम का तमाम, यानी आप सोच रहे मिसाइल सिस्टम यहाँ पर पहुंच गया है और कोई हाइपरसोनिक या कोई मिसाइल यहाँ पर पहुंच गया है। अब वो किस लिए आएंगे, वो जाहिर सी बात है कहेंगे कि हम तो ईरान की मदद के लिए आए हैं, हम फलाना है। अफगान तालिबान को इस वक्त सबसे बड़ी क्या चीज़ है, वो कहते हैं जी अमरीकी ड्रोन्स आते हैं हमारी फिजा में, सब कुछ निगरानी करते हैं और चले जाएंगे। चाइना को क्या चाहिए, चाइना तो ये चाह रहा है ना कि ये सारा काम हो जाए, क्योंकि देखिए अगर अमेरिका का ड्रोन अफगानिस्तान की फिजा में आता है तो वो चाइना की भी मॉनिटरिंग करता है। तो अब रूस असल में आगे बढ़कर ये काम कर रहा है कि ठीक है जहाँ जहाँ अमेरिका के स्टेक्स हैं तो मैं वहाँ पर जाऊँगा और मैं वहाँ जाकर ये काम करूँगा। और इस सारी सूरत हाल में सबसे ज़्यादा अहम तरीन मरहला ये हुआ है कि चाइना ने इस वक्त पुतिन को कहा है कि आपने भारत को किसी तरह का कोई एडवांस मिसाइल सिस्टम नहीं अब देना, किसी तरह का कोई एडवांस मिसाइल नहीं देना, कोई वेपन्स नहीं देने बड़े लेवल के, कोई चीज़ आपने नहीं देनी। मसला ये है कि इस वक्त खतरनाक सूरत हाल चाइना के लिए पैदा हुई है कि चाइना अब ये कह रहा है कि भाई नहीं अब बहुत हो गया। आप जानते हैं कि कल अरुणाचल प्रदेश में हुआ ये है जिसको साउथ तिब्बत कहते हैं, इंडिया ने $1 अरब का ऐलान किया है कि हम वहां पर अपने हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बना रहे हैं। उधर चाइना ने ऐलान कर दिया है कि हम इंडिया को वार्न कर रहे हैं कि हमारे सबर का पैमाना ना लबरेज हो जाए, जरा धमकी चेक कीजिए। कह रहे हैं कि आपने अगर यहाँ पर कंस्ट्रक्शन की तो हम इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे, ये हमारा है। यानी अरुणाचल प्रदेश जो इंडिया की रियासत है उसको वो कह रहे हैं ये हमारा है, आपने यहाँ पर कंस्ट्रक्शन की तो हम इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। वो कहते हैं हम अपने मुल्क में कह रहे हो, कह रहे हैं ये तुम्हारा नहीं है हमारा है, अरुणाचल प्रदेश साउथ तिब्बत है और हमने तुमसे वापस लेना है। तो सबसे पहले तो वो ये काम करें कि इनके पर काट रहे हैं, वो पैगाम असल में अमेरिका को भी दे रहे हैं। चाइना असल में इसे बहुत ज़्यादा सीरियस है, वो हर वो काम करना चाहता है जिससे वो अमेरिका इजराइल इन ताकतों को पूरी तरह कंटेन करे। तो सबसे पहले याद रखिएगा अमेरिका के जितने भी दुश्मन हैं उन सबको अब लॉन्ग रेंज हथियार, मिसाइल, ये तमाम चीज़ें प्रोवाइड करेगा रूस, और ओपनली भी कर सकता है और अंदर खाते भी कर सकता है। लेकिन जो मामला इन्होंने कर लिया है कि वो ओपनली करने को भी तैयार है। देखिए सबसे बड़ा झटका तो तब लगेगा जब रूस ओपनली ऐलान करेगा कि हम लेबनान के साथ हैं, और हो सकता है उनके लीडरान को वहाँ पर वो बुला ले और मामला तय करें जी हम इनके साथ खड़े हुए हैं और हम इनको लॉन्ग रेंज मिसाइल देने जा रहे हैं, फलाना कुछ देने जा रहे हैं, कुछ भी देने जा रहे हैं। देखिए अगर वो ओपनली भी दे दें
तब भी इनके लिए झटका है, वो अंदर खाते भी दे दे तब भी झटका है। अब ये एक नई एक स्ट्रेटजी आई है सामने, वो बड़ी इंटरेस्टिंग है कि रूस की टेक्नोलॉजी पहुंचती है ईरान में और सारे पार्ट्स पहुंचते हैं रूस से, रिपेयर करने से लेकर मेंटेनेंस सब कुछ। अब होता गया है कि वो उन पार्ट्स को ऊपर से डिज़ाइन उसका बदल के, पूरी अंदर मशीनरी वही होती है और जल्द अज जल्द वो अपना डिज़ाइन बनाकर एक डिफेंस सिस्टम लॉन्च कर देते हैं। इसी तरह मिसाइलों की सूरत हाल है। तो अगर इन्होंने यहाँ से अपने मिसाइल सारे वहाँ पर पहुँचा दिए लेबनान में, तो इसराइल को तो छोड़ेंगे नहीं। अब लेबनान के पास जब मिसाइल सिस्टम होगा, फिर उसके बाद इराक में होगा, जगहों पर होगा, तो वो करेंगे कि अमेरिका को नहीं हमने छोड़ना। अगर अमेरिका मेरे यानी दुश्मनों को मिसाइल दे रहा है कि मारो रूस के ऊपर, तो फिर हम उनको देंगे कि मारो अमेरिका के अड्डों पर, तो फिर तो कोई नहीं छोड़ेगा। अब देखिए हौसियों के निशाने पर इस वक्त अमेरिका के सारे अड्डे हैं, ये रूस को उकसा रहे हैं, रूस इनको नहीं छोड़ेगा। और सबसे बढ़कर अल्टीमेटली इसमें जो लूज करेगा वो इसराइल करेगा। और इसराइल को ये बात अच्छी तरह पता है कि रूस को जितना हम दबा रहे हैं वो उतना ज़्यादा उभर कर सामने आ रहा है। देखिए उस बंदे को कतन कोई परवाह नहीं है, वो दुनिया की किसी ताकत से डरता नहीं है। वो कहता है कि मैं ऑल इन ऑल हूँ, यानी मैं किसी से कोई मामला मेरा ऐसा नहीं है कि आपने मुझ पर पाबंदियाँ लगा दी है, अब मुझे कोई परवाह ही नहीं है। देखिए कुदरत ने उनको गैस दी है, कुदरत ने उनको तेल दिया है, उनके यहाँ वहाँ पर इतना सिस्टम है कि दुनिया में उनकी डिमांड्स है, वहाँ पर हर तरह से अपने मुल्क उन्होंने मैनेज किया हुआ है, तेल उनके पास है, उनको किसी तरह की ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अल्टरनेट सिस्टम बैंकिंग जो है वो चाइना ने उनको दे दिया है, मिसाइल वो बनाते हैं, डिफेंस फैक्ट्रियाँ उनकी है, दुनिया में बेहतरीन हथियार वो बनाने वाले हैं, तो उनको क्या परवाह है। उन्होंने दुनिया से कुछ चीज़ खरीदी है, बल्कि आप देखिए दुनिया मोहताज है। इंडिया का प्राइम मिनिस्टर इस वक्त किसी दौरे पर चला जाए और जाकर वहाँ पर गले मिलता फिरे, तो आप बता दें कि इंडिया के ऊपर कितना प्रेशर है कि वो भी इन चीज़ों को सस्टेन कर रहा है बड़ी मुश्किल से। लेकिन रूस को कोई परवाह नहीं, दुनिया उसकी मोहताज है। आपने एक चीज़ गौर नहीं की कि मोहम्मद बिन सलमान ने क्या कमाल काम किया है। उन्होंने G7 को धमकी दे दी है, दुनिया के 7 बड़ी मईशत वाले ममालिक को धमकी दे दी है कि अगर आपने रूस के असासे जब्त किए तो फिर हम यूरो बॉन्ड्स बेच देंगे, अमेरिकन बॉन्ड भी बेच देंगे और सारी मार्केट तितर बितर हम कर देंगे। यानी आपने अंदाज़ा नहीं किया होगा कि इजराइल अपनी पावर जो है वो खो रहा है और रूस और बाकी ताकतें अपनी पावर एक्सपैंड करती जा रही हैं। चाइना भी इस सारे स्नैरियो में सबसे बड़ी इस वक्त पोजीशन लेकर बैठा हुआ है और इस सारे सूरत हाल में सबसे ज़्यादा अहम बात यह है कि चाइना ने अपने डिफेंस सिस्टम तैयार कर लिए हैं। अमेरिका तो मिसाइल डिप्लॉय करेगा, अब चाइना ने काम ये किया है कि वो भी रूस के साथ गुआम वाली साइड पे जा रहा है और इसके बाद वो क्यूबा और दीगर चीज़ें और हर जगह पर, यानी गुआम जो अमेरिका वहाँ पर जाकर सब कुछ डिप्लॉय कर रहा है, तो वहाँ पर उसके इर्द गिर्द और रूस के साथ मिलकर अपने पंजे यानी एक्सपैंड कर रहे। क्यूबा में इस वक्त चाइनीज जा रहे हैं। सो अमेरिका को ये बात पहली दफ़ा पता चल गई है कि भाई क्यूबा के साइड पर आकर मेरे दरवाजे पर ये पहुंच रहे हैं, तो इन्होंने हमें छोड़ना नहीं है। तो आप रूस से पंगे लेंगे, अगला छोटे छोटे ग्रुप्स को इतना मजबूत करेगा कि पूरे पूरे मुल्क को वो खा जाएंगे। अब हौसियों ने इस वक्त इतनी बड़ी बला बना ली है चीज़ें और इस तरह अमेरिका को पकड़ा हुआ है कि आप और हम उसका अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। सो अब अगर यहाँ पर मिसाइल, देखिए रूस में मिसाइल लगेंगे तो फिर इजराइल में भी हिट होंगे, ये बात आप समझ लें। ये अब फैसला हो गया है कि अगर आप हमारे इत्तेहादियों के खिलाफ जाएंगे तो हम आपके इत्तेहादियों के खिलाफ जाएंगे, यानी अगर आप ईरान के खिलाफ जाएंगे तो फिर हम आपको भी नहीं छोड़ेंगे। अगर आप लेबनान के खिलाफ जाएंगे, और ये दिन दूर नहीं है कि अनकरीब आपको रूस में कॉन्फ्रेंस होती हुई नजर आए, उस कॉन्फ्रेंस के अंदर चाइना बैठा हो या चाइना के अलावा ऐसी कॉन्फ्रेंस भी कर सकता है कि ईरान हो, लेबनान और हौसियों की पूरी टीम यहाँ पर हो और उसमें इराक भी शामिल हो और कहें ठीक है जी अमेरिका को भी मारो और इसराइल को भी मारो। ये दिन दूर नहीं है कि असल लड़ाई इसराइल बमुकाबला रूस होगी और वो
यूनिवर्सल टेलीविजन को सब्सक्राइब करना ना भूलें। उसके बाद बेल बटन पे क्लिक करें और अपने कमेंट्स के सेक्शन में अपने कीमती जो ख्यालात का इजहार ज़रूर